کے لیے کشمیر کے لیے بھی کہ ہم پی ایل ایف کو ری آرگنائز کریں گے، اور اسی لیے یہ میں نے احباب کو یہاں بلایا بھی ہے۔ آج میرے ساتھ یہاں پارٹی کے سینٹرل انفارمیشن سیکرٹری جناب فیصل کریم کنڈی صاحب بھی موجود ہیں۔ پریکٹس کرتے کام ہے لیکن بائی پروفیشن یہ بھی لائر ہیں تو ان کو بھی ہم نے یہاں بلایا۔ تو اب میں گلاب شاہ صاحب ہمارے پریزیڈنٹ ہیں پی ایل ایف کے پی کے، میں ان سے گزارش کروں گا کہ یہ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ تو میرے ساتھ پنجاب کے جنرل سیکرٹری پی ایل ایف موجود ہیں، وائس پریزیڈنٹ بھی موجود ہیں، تو جی گلاب شاہ صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اپنے سیکرٹری جنرل سینٹرل جناب نیر بخاری صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ ہمارے پی ایل ایف کے پریزیڈنٹ بن گئے سینٹرل، تو اس پہ میں ان کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور یہ پارٹی کی طرف سے بھی اچھا فیصلہ ہے، کیونکہ کافی عرصے سے کوسا صاحب بیٹھے ہوئے تھے اس سیٹ پہ، تو آگے پیچھے کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ اور ابھی جو ہمارے نئے صدر صاحب نے بخاری صاحب نے جو اعلان کیا کہ ری آرگنائزیشن پی ایل ایف کی، تو یہ اس کو بھی میں خوش آئند سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی بات ہے، کیونکہ 4 سال 5 سال ہو گیا ہم بیٹھے ہوئے ہیں، تو کسی کو کچھ پتہ نہیں چلتا کہ ہمارے کیا ہم نے امپروو کیا ہے کیا نہیں کیا ہے۔ تو یہ اچھی بات ہے کہ ری آرگنائز کمیٹی اس کے لیے بنے اور ری آرگنائزیشن ہو جائے، تو یہ پی ایل ایف کے لیے ایک اچھا اقدام ہے اور ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ جہاں تک آج بلایا پی ایل ایف کو بلایا، تو پی ایل ایف کو کم از کم تھوڑا بہت یہ سپریم کورٹ میں جو چل رہا ہے اس پہ بھی بولنا چاہیے تو یہ تھی کہ ہمارے پریزیڈنٹ صاحب خود بولتے، لیکن تھوڑا موقع ہم بھی دیے تو ایک چھوٹا سا ہم بھی عرض کر دیں کہ ہم تو حیران ہیں اس سپریم کورٹ کو کہ جو جونیئر ججز ہیں ان حالات میں، جو کہ سپریم کورٹ کافی اس وقت کنٹروورشل ہو چکا ہے، اور ان حالات میں جناب انہوں نے چیف صاحب نے جونیئر ججز کو بیٹھا کے، حالانکہ چاہیے تھا اس کو کہ بھائی نمبر 1 سے لے کے نمبر 8 تک سب کو بیٹھا دے، تو پھر پاکستان میں لوگ بھی مان جاتے ہیں کہ ہاں پاکستان کی جوڈیشری جو ہے یہ ایک انڈیپینڈنٹ ہے اور بالکل انصاف کی طرف دیکھتی ہے اور انصاف کی طرف فیصلے کرتی ہے۔ خاص کر ان حالات میں جو آج کل چل رہے ہیں، میں تو بڑا افسوس مجھے ہو رہا ہے چیف جسٹس صاحب پہ کہ یہ کیسا بینچ آپ نے بنایا ہے، یہ تو بالکل آپ کی اپنی منمانی بینچ ہے۔ تو جو بھی اور حیرانگی کی بات یہ بھی ہے کہ قانون ابھی بنا بھی نہیں ہے، اور جناب وہ سپریم کورٹ میں آج اس پہ آرگومنٹس ہو رہے ہیں۔ ہم نے تو آج تک یہ چیز نہیں دیکھی تھی، لیکن چلو اللہ آگے خیر کرے ہمارے ملک کا، ہم تو دعا کریں گے کہ یہ ملک ترقی کرے اور ہماری جوڈیشری جو ہے وہ انصاف کے فیصلے کرے، انصاف کو دیکھتے ہوئے حالات کو دیکھتے ہوئے وہ فیصلے کرے، تو ہم خوش رہیں گے۔ تھینک یو۔ افتخار شاہد صاحب جو ہے یہ ہمارے جنرل سیکرٹری ہیں پی ایل ایف پنجاب کے، اور ان کے ساتھ اور بھی عہدیداران موجود ہیں۔ خالد ہاشمی صاحب ہیں، نوید الحسن صاحب ہیں، لاہور سے آئے ہیں، شکیل پاشا صاحب ہیں، نائب صدر ہیں، شاہد عباس صاحب ڈپٹی جنرل سیکرٹری ہے، صفدر بھٹی صاحب ہیں، عمران یعقوب صاحب ہیں، اور کے پی کے سے جو گلاب شاہ صاحب کے ساتھ جمیل وارثق صاحب ہیں، پی ایل ایف پشاور ڈویژن کے پریزیڈنٹ، نور بادشاہ صاحب ہیں، پریزیڈنٹ ہے مردان ڈویژن کے، صفدر علی خان صاحب ایڈوکیٹ، کیسر علی خان جنرل سیکرٹری ہیں مردان ڈویژن کے، امتیاز خلیل صاحب پریزیڈنٹ ڈسٹرکٹ پشاور، اجاز علی شاہ انفارمیشن سیکرٹری پی ایل ایف پشاور، سعید ایم الیاس اور عدنان قاضی اور صفدر خان صاحب۔ تو یہ وکلاء بھی جو ہماری پی ایل ایف کے عہدیداران ہیں یہ بھی یہاں تشریف فرمائے، اور پنڈی کے جناب ساجد تنولی صاحب وائس پریزیڈنٹ پنجاب پی ایل ایف، اسرار عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، میڈم جو الیکٹڈ ہماری وائس راجہ اسرار عباسی صاحب پی ایل ایف پریزیڈنٹ پاکستان ہیں، وائس پریزیڈنٹ شاہد مشال شاہد مغل صاحب پی ایل ایف راولپنڈی ڈویژن، جی شاہد صاحب پہنچ گئے ہیں، ملک ظہیر صاحب ہیں پریزیڈنٹ پی ایل ایف راولپنڈی ڈسٹرکٹ کے، زیادہ ایاز ہیں سینئر وائس پریزیڈنٹ ہائی کورٹ بار راولپنڈی کی، شی از این الیکٹڈ آفس بیرر، اور شاہد بھٹی صاحب ہیں وائس پریزیڈنٹ ڈسٹرکٹ بار راولپنڈی کی، اور گجرانوال سے بھی ہمارے دوست یہاں تھے، میرا خیال وہ چلے گئے ابھی، ارشاد سندھو صاحب جی، اسلام آباد کے شکیل عباسی صاحب، راجہ امجد صاحب پی ایل ایف کے ہمارے پریزیڈنٹ ہیں، شکیل عباسی صاحب ہمارے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہیں پارٹی کے۔ معزز اراکین میڈیا، آج ہمارے جو نئے صدر ہیں پی ایل ایف کے اور سیکرٹری جنرل ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، سید نیر بخاری صاحب، یہ
हम पार्टी लीडरशिप का इंतहाई शुक्रिया अदा करते हैं कि ये फैसला आपको बहुत पहले करना चाहिए था, लेकिन चले आज हो गया। सब ने देखा कि जनाब पार्टी की लाइन क्या है, पार्टी का सियासी आईनी मौक़िफ़ क्या है। उससे हट के ये सोचा भी नहीं जा सकता कि बिलावल भुट्टो साहब की जो विजनरी लीडरशिप है, जरदारी साहब का जिसको दुनिया मानती है कि जनाब वो सियासत के इमाम हैं, और उनके विजन के सामने हम मीडिया पे आके कोई ऐसी बात करें और बात भी बिलावल साहब की ठीक हो, जरदारी साहब की ठीक हो, हमारी लीडरशिप की बात हर लिहाज से ठीक हो, लॉजिक हो उसमें, और इसके बावजूद हम कंफ्यूज करें तो जो हमारे पीएलएफ के मेंबरान थे, ओहदेदारान थे, ये कुछ अरसे से ये डिफ़िकल्टी महसूस कर रहे थे। हम जो पीएलएफ के दोस्त हैं, हम सब भुट्टो हैं, हमारे अंदर भुट्टो है, वो नहीं निकल सकता। हम किसी एक शख्स के साथ नहीं हैं। तो आज हम समझते हैं कि मौजूदा जो सूरत हाल चल रही है, इसमें नैयर बुखारी साहब का इंतखाब एक खूबसूरत इंतखाब है। इनका ऐलान होते ही अभी बलूचिस्तान के हमारे जो सूबाई सदर हैं, उनका फ़ोन पे मेरी बात हुई कि मैं बलूचिस्तान में हूँ, और मेरी तरफ से बुखारी साहब को एतमाद का इजहार कीजिए, हम बलूचिस्तान की पीएलएफ हम आपके साथ हैं। हम किसी एक फर्द के साथ नहीं हैं, हम अपनी क़यादत के साथ। और नैयर बुखारी साहब का एक माजी है यार, जैसे ये सूरज निकला हुआ है, इस तरह इनका माजी भी चमक चमक कर हमें बताता है कि ये क्या है। सारी जिंदगी पीपल्स पार्टी करती। तो हम सोच नहीं सकते कि इन हालात में पार्टी की लाइन से इनराफ करें। हम चट्टान की तरह, हिमालय की तरह अपनी क़यादत के सियासी आईनी मौक़िफ़ के साथ खड़े, हम नहीं पीछे हटेंगे। आज जब इस मुल्क में ज़ियाउल हक आमिर की आमरीत का सूरज सवा नेज़े पे होता था, तो उस वक़्त भी पीएलएफ के हमारे दोस्त, एहतजाज तो बड़ी छोटी चीज़ है, हमने जाने दी हैं, हमने फांसियां झूली, हमने कोड़े खाए, 11 जेलें तो मैंने देखी। नैयर बुखारी साहब की एक दास्तान, लाहौर के शाही किले का आखिरी सियासी कैदी मैं हूं, ये तनोली साहब बैठे हुए हैं, शायद मुगल साहब हैं हमारे रावलपिंडी के दोस्त, सब जितने लोग बैठे हैं, पूरी एक एक उस पर किताब लिखी जा सकती है। तो हम तो आमरीत से लड़ते रहे। तो उस जमाने में जब मेरे वतन अजीज का आइन आमरीत की सूली लटका हुआ था, उस वक़्त ये 1980 के सुप्रीम कोर्ट रूल्स बनाए गए और चीफ जस्टिस साहब को इसका घंटाघर बना दिया, और मर्जी के बेंच, मर्जी के फैसले, ये 1980 से चल रहा है। पाकिस्तान बार कौंसिल, सूबाई बार कौंसिल, बार एसोसिएशन, सारी वकला की ये हमेशा से डिमांड रही है कि भाई ये मुगलिया दरबार ख़त्म करें आप। यहाँ जो फैसले होने चाहिए, इंसाफ होना चाहिए, वह कानून और आइन के पैरामीटर में हो। ये आइन जो है, ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो की देन है। इस आइन ने पार्लिमान की कोख से जन्म लिया है। ये पार्लिमान इस आइन की मां है। आज उस मां के बाल नोचे जा रहे हैं, उसके मुंह पे थप्पड़ मारे जा रहे हैं, उसको सड़कों पे घसीटा जा रहा है। इस पार्लिमान को, किस मुल्क में पार्लिमान के बगैर जमहूरियत चल सकती है? ये पार्लिमान
हम समझते हैं कि पाकिस्तान के 23 करोड़ अवाम की जो मंशा है उसकी आकाश है, उसकी नुमाइंदा है। ये सॉवरन इंस्टीट्यूशन है, ये अवाम बनाते हैं। तो अब एक सोची समझी साजिश के तहत 1980 की वो आमराना सुप्रीम कोर्ट रूल्स की बुनियाद पे मर्जी के बेंच बना बना के हमेशा पार्लियामान पे हमला किया गया। पार्लियामान अवाम के हकूक की ज़ामन है, यहाँ आइन बनते हैं, यहाँ कानून बनते हैं। तो गुजारिश ये है कि इस पार्लियामान पे ये पहला हमला नहीं है, आज भी हमला हो रहा है। और बिलावल साहब ने जो कौमी असम्बली में स्पीच की वो तारीखी स्पीच है। हम उस स्पीच के एक एक लफ्ज़ की हुर्मत को सलाम करते हैं, हम उसके साथ खड़े हैं। हम वकला बरादरी ये समझती है कि जनाब हम पीछे नहीं हटेंगे, हम ज़ियाउल हक से नहीं डरे, हम मुशर्रफ से नहीं डरे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो पार्टी है इस कुर्राए अर्ज़ पे जिसने इस मुल्क में 4 आमरीतों को रुखसत किया। कुंडी साहब, 4 आमरीतें हमने रुखसत की। अयूब खान का मंजी बिस्तरा किसने गोल किया था? जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने। याया खान की छुट्टी किसने कराई थी? जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने। ज़ियाउल हक के खिलाफ हजारों कुर्बानियां, कोड़े, फांसियां, अपनी क्या क्या यार, पूरी एक दास्तान है, एक तारीख है। हमने इस मुल्क की सियासी जद्दोजहद की तारीख अपने खून से लिखी है और ज़ियाउल हक का हमने मुकाबला किया, उसको फारिग किया। आखिरी जरदारी साहब की विज़डम की वजह से परवेज़ मुशर्रफ को परवेज़ मुशर्रफ को हमने आसफ जरदारी की विज़डम की बुनियाद पे जैसे मक्खन से बाल निकाला जाता उसको निकाला। इस आइन के सबसे बड़े कस्टोडियन पासबान हम हैं। हमें ना कोई पढ़ाए कि आइन खतरे में। हमने इस आइन के लिए अपनी जानें दी हैं, बहुत कुर्बानियां दी हैं। तो आज हम समझते हैं जी कि PLF पाकिस्तान बार कौंसिल के मुतालबे और जो सूबाई बार कौंसिल्स हैं, बार एसोसिएशन हैं, कि जनाब ये फरमाइशी सियासी बेंच 8 रुकनी जो बनाया गया है, इसमें तासुब है, इसमें सियासत है, इंसाफ की कोई तौका नहीं है। सही बाइकआउट आज किया गया है और हम इस मुतालबे में, इस जद्दोजहद में पाकिस्तान बार कौंसिल, सूबाई बार कौंसिल, बार एसोसिएशन हम खड़े हैं। वकला का एक ही इसमें है कि इस मुल्क में इंसाफ हो। क्या इंसाफ ऐसे होगा कि जैसे मुगलिया दरबार में मुगल आजम ने अनारकली का मुकदमा सुना था, ये तो उससे भी बदतर तरीके से सुना जा रहा है। तो हम जनाब, ये है कि वक्त जरा कम है और भी दोस्तों ने बात करनी है, तो हम जनाब पूरी PLF हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपकी अपॉइंटमेंट होते ही जैसे जंगल में आग फैलती है, आपके हवाले ये खुशी की आग फैली है। तो हम जनाब आपके साथ हैं। तो हम हर तरह की जद्दोजहद के लिए तैयार हैं, हम कुर्बानियाँ करते रहेंगे। हम सारे नज़रियाती लोग जो हैं इसलिए पीपल्स पार्टी में हैं कि हम भुट्टो के फ़लसफ़े को, नज़रिए को, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और जरदारी साहब के जो सियासी फ़लसफ़ा है उसको मानते हैं, नज़रियाती तौर पर उनके साथ हैं। बाकी ये है कि जो हुक्म होगा नैयब बुखारी साहब का, जो फैसला करेंगे पूरे पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में, KP में, ख़ास तौर पे हम पंजाब का तो यकीन दिलाते हैं कि भरपूर ऑर्गेनाइजेशन मनज़्ज़म तरीके से सब दोस्तों को जोड़ेंगे। जो नाराज़ हैं उनके घर जाएंगे, उनको मनाएंगे और PLF को इंतहाई मजबूत शक्ल में पार्टी को बना के देंगे। थैंक यू जनाब। मैं सिर्फ अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मैं ये नहीं चाहता कि आप मेरे साथ हैं,
आप सब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हैं। आई रिप्रेजेंट पीपल्स पार्टी। तो मैं नकवी साहब भी बैठे, इनका नाम पहले मैं मुझसे मिस हो गया। तो इंशाल्लाह हम मिलके रीऑर्गेनाइज करेंगे और हम अपनी पार्टी को भी और रिजल्ट्स देंगे इंशाल्लाह, पीएलएफ के हवाले से भी और पब्लिकली भी। थैंक यू वेरी मच। चलेंगे साहब इजाज़त। लतीफ खोसा साहब का स्टेटस क्या है, वो पार्टी में है या पार्टी से निकाल दिया गया है, सिर्फ ओहदा वापस ले लिया गया? ये तो देखिए अभी तो सिर्फ ओहदे की बात है। आपने कोई स्टेटमेंट जो जरदारी हाउस से जारी हुई है या बिलावल हाउस से, तो वो इसी हद तक है कि उनको उनसे चार्ज लेके मुझे चार्ज दिया गया, इसी हद तक स्टेटमेंट है। तो वही पीपल्स पार्टी की स्टेटमेंट है, वही मेरी स्टेटमेंट है। थैंक यू।